So today we are going to calculate the kinetic energy of a rotating body. Kinetic energy of a rotating body. Yes. So first of all, we required one rotating body. Am I audible to you? Okay, done. So first of all, note down the heading. Note down the heading. Note down the heading. Yes, here. Kinetic energy of rotating body. Kinetic energy of rotating body. Kinetic energy of rotating body. Kinetic energy of rotating. So first of all, we will draw one rotating body. One rotating body. Once again, the consideration section will be same. It consists of the n number of masses we are going to consider. This is the rigid body, which perform the which perform the rotational motion about this particular axis. Either it is in clockwise or anti-clockwise direction. This is the anti-clockwise direction. Let's suppose this particular body it is rotated with an angular velocity omega. Also we are going to consider the different particles, that is m1, okay, m2, m3, dash 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 up to the mn. We are going to consider the n number of particles present in that particular rigid body, and these particles are situated at a distance of below. This is nothing but the distance r1, this is nothing but the distance r2, this is nothing but the distance r3, and this is nothing but the distance rn. Let's suppose these particles are situated from the axis of rotation at a distance of r1, r2, r3 and rn. Okay, now what are the other things that we have to consider here? यहाँ पे हमें जो कंसिडरेशन करना है, दिस पर्टिकुलर बॉडी इट इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो हमने लिख लिया. देन m1 m2 m3 आप लिख सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में कंडक्ट किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है. ठीक है, जैसे मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3. कंसिडरेशन सेक्शन वही रहेगा, कंसिडरेशन सेक्शन में कोई ऐड नहीं होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर राइट डाउन दिस इज व्हाट डायग्राम. यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डायग्राम. बराबर है. नेक्स्ट अपना कंसिडरेशन सेक्शन तो सब आपको पता है. कंसिडरेशन में हम क्या क्या लिखने वाले आपको पता है. कंसिडरेशन में आपको क्या क्या लिखना है. Yes, what we have to write down in consideration, we have to write down that m1, okay, m2 comma m3 up to dash 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 mn are the masses, okay, masses of a particle. Okay, जो भी हमने कंसिडर किया है of a particle. Then r1 r2 r3 dash 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 dash, that is rn, are the respective radii, from कहाँ से, from the axis of rotation, ठीक है. देन यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी. क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी. आर तो कंसिडर कर लिया, मास भी कंसिडर कर लिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. जनरली मूविंग बॉडी के लिए अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो कर रहा है और इस तरीके से बॉडी अगर मोशन में इसका इस पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv square. This is the kinetic energy of the straight line motion. Now the particle it is in what? Yes, this particular particle it is in the, okay, every particle. Now अगर आप बॉडी की बात करते हो, बॉडी कंप्लीटली इन रोटेशनल मोशन में, मगर आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल को आप अगर कंसिडर करते हो, इट इज हैविंग अ लीनियर मोशन लाइक दिस. ये पार्टिकल इस तरीके से लीनियर मोशन करेगा, इसकी वेलोसिटी v1 रहेगी. बराबर. ये पार्टिकल इस तरीके से लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर रेडियस यहाँ पे v2 रहेगी. बराबर. ओके, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस इस तरीके से रहेगी, दैट इज v3. इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस रहेगी इस तरीके से. बराबर है, वो रहेगी vn लाइक दैट.
बराबर। सो हर एक पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी की, ओके, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ईच पार्टिकल विल बी अ टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू द रेडियस. So for each particle, first of all, we are going to calculate the kinetic energy. So therefore kinetic energy, अभी solution की बात आ गई, अभी ये सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए, ओके. और ये भी आपको पता है यहाँ पे कि हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, हर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूमेगा, हर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूमेगा, हर एक पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमने वाला है. क्लियर? सो हियर सॉल्यूशन में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द यस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल m1. m1 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर बनेगी. काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर. मगर आपको पता है यहाँ पे, ओके, सिंस आप ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है आप v को क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो. देयरफॉर यहाँ पे आपको पता है v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा बन जाएगा, बराबर है, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. देयरफॉर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल m1 बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला है फिर, हाफ, ओके, m1 v1 की जगह पे आपको पुट करना है, v1 की जगह पे देखो v1 दैट इज r1 ओमेगा होल स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, दैट इज हाफ m1, ओके, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो ये तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी है. तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है. तो नाउ लेट अस कंसीडर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल m2 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m1, हाँ m1, यस m1 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा m2, बराबर है. मास m2 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है. इसी तरीके से अगर आप बोलते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल m3 के लिए क्या बनेगी, 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो सच दैट फॉर mnth पार्टिकल के लिए क्या बनेगी, 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर इस तरीके से. सो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. हमने हर एक पार्टिकल के लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली. अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट बॉडी क्या बनेगा, मुझे बताओ. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, क्या बनने वाला है बताओ. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी क्या बनेगा, यस, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 अप टू डैश अप टू दी mn. सो इस तरीके से आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी. तो अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं. देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ. तो बताओ जल्दी, अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यस, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ, हाफ m1 r1 ओमेगा, ओके, f1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और आप इसको इस तरीके से लिखो, हर एक दो तो एटलीस्ट लिखना ही है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से. तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या कॉमन आने वाला है, क्या ओमेगा कॉमन आने वाला है, 1/2 भी कॉमन आने वाला है, बराबर है. यहाँ पे क्या कॉमन आने वाला है बताओ, 1/2 कॉमन आएगा, ओमेगा भी कॉमन आने वाला है. तो यहाँ पे बचेगा क्या, m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू mn स्क्वायर, इस तरीके से। तो 1/2 ओमेगा, ये क्या है बताओ जल्दी फास्ट। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट व्हाट? Moment of inertia, distribution of masses from the axis of rotation, product of mass and square of its distance from the axis of rotation, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? दैट इज आई, बराबर है। यस, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ आई रीअरेंज करके लिख लेते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द formula for the total kinetic energy of a rotating body. Total kinetic energy of the rotating body will be half I omega square. Clear? Note down कर लो fast.